Hello students, welcome to the YouTube channel of Invisible Hand. We are continuing with our series of solving 10-year UGC NET papers from 2015 to 2025 in a topic-wise fashion. And today we are going to address the topic price effect and given goods. So the first question is, why does the demand curve have a negative slope? Due to income effect, due to substitution effect? Your options are only one, only two, both one and two, and none of the above. तो क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करना चाह रहा है इस बात पे कि इनवर्स रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज दैट टू गुड्स एक्स एंड वाई। सो व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स, क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस। दिस इज योर प्राइस effect. However, this price effect can be decomposed into substitution effect and income effect. What do you mean by substitution effect? Substitution effect का मतलब है कि देखिए, अगर price of x गिरता है, price of y constant रहता है, तो जो अब good x है that has become cheaper than good y. As a result, the consumer will substitute the cheaper good for the relatively more expensive good. Therefore, quantity of x will increase. So this is the substitution effect. Secondly, what does the income effect tell you? When the price of a good falls, income of the consumer remains constant. However, the real income of the consumer has increased because of the fall in price. तो इस केस में जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई, और इनकम का मतलब है रियल इनकम इंक्रीज हुई, तो वो उस गुड को ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इनकम इफेक्ट। नॉर्मल गुड्स के केस में इन दोनों की वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप करेगा, इसलिए आपका ऑप्शन है बोथ 1 and 2। ये जो कटआउट है दिस इज फ्रॉम द बुक H.L. आहूजा, एंड आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप ये एक बार पढ़ के देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एक्सप्लेनिंग द प्राइस इफेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कांस्टेंट? रियल इनकम, मनी इनकम और प्राइस रेशियो। सो व्हाट हैपेंस इन द प्राइस इफेक्ट? प्राइस इफेक्ट में अगर कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है और अगर किसी एक का भी प्राइस चेंज होता है तो प्राइस रेशियो तो चेंज हो गया, प्राइस रेशियो तो फिक्स नहीं रहा, तो ये ऑप्शन हम कट कर सकते हैं। दूसरी बात, मनी इनकम हम अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट है जब हम लॉ ऑफ डिमांड को स्टेट करते हैं, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। However, when the price ratio changes, the real income of the consumer also changes. Hence, this also gets cancelled out. So your final answer is only option B. The next question is, if the income effect for a good is in the opposite direction as the substitution effect, but the substitution effect dominates, then the good is normal, given, inferior but not given. तो हम तीन तरह के गुड्स इकोनॉमिक थ्योरी में कंसिडर करते हैं, नॉर्मल, inferior and given. In the case of normal good, when the price of a good falls, quantity increase, the substitution effect and the income effect both are operative and both work so that the quantity of the good increases. In case of inferior goods, what happens when the price of good X falls? The substitution effect operates. However, the income effect operates in a manner that as the income of the consumer increases, वो ये inferior good को prefer नहीं करेगा। तो income effect की वजह से जो inferior good का consumption है, quantity of X, वो decline होगा। बट क्योंकि substitution effect greater होता है income effect से, तो इस केस में भी quantity of X increase ही होगी। In the case of given good, if your X is a given good, the substitution effect is dominated by the income effect. As a result, quantity of X falls.
This is an exception. Giffen goods are an exception to the law of demand, and it is also called as Giffen paradox. So the correct answer to the question number 3 is that your good is inferior but it is not Giffen. Since उसने कहा है कि इनकम इफेक्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है. Moving on to question number 4. Demand for foodstuff is income inelastic. This is explained by. So the 4 options are Giffen's paradox, Engel's law, Gauss's law, and Ricardo's law. So the correct answer is Engel's law. अगर हम बुक में देखें तो read this here कि Ernest Engel made an empirical study of family budgets to draw conclusions about the pattern of consumption expenditure. That is, expenditure on different goods and services by the households at different levels of income. The conclusions he arrived at are still believed to be generally valid. According to Engel's study, as the income of a family increases, the proportion of its income spent on necessities such as food falls and that spent on luxuries increases, which means that income elasticity of food items is less elastic or inelastic, and in the case of luxuries it is elastic. So that's what the Engel's law state. So the correct answer is Engel's law. बट देखिए पेपर के परस्पेक्टिव से जो चारों ऑप्शंस हैं आपको पता होने चाहिए. तो गिफिन्स पैराडॉक्स अभी हमने करा है कि प्राइस के फॉल होने से क्वांटिटी ऑफ एक्स भी फॉल हो जाता है. ये गिफिन पैराडॉक्स है. अगर आपको गिफिन पैराडॉक्स पढ़ना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेवलेंट गुड्स क्या होते हैं. ये आप खुद से देखिए. तीसरा जो है गॉसन्स लॉ. गॉसन्स लॉ, गॉसन के 3 लॉ हैं और गॉसन का जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट द मोर यू कंज्यूम ऑफ अ गुड द लेस मार्जिनल यूटिलिटी यू विल बी डिराइविंग आउट ऑफ इट. द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. And the third law is that scarcity is a precondition for economic value. ऑप्शंस में एक रिकार्डो लॉ भी दे रखा है. तो ये रिकार्डो का लॉ ऑफ रेंट है जिसमें वो कहता है कि जो रेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड के वो किस तरह से डिटरमिन होते हैं. तो जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है उसको सबसे पहले कल्टिवेट किया जाएगा और जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होगी लेस फर्टाइल लैंड विल ऑल्सो बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन. और जो डिफरेंस होगा किसी भी पीस ऑफ लैंड का दैट विल बी द रेंट होगा. द डिफरेंस विल बी between its productivity and that of the least fertile land in use, that is the marginal land. रिकार्डो का लॉ ऑफ रेंट है. ये हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं एंड ये भी इंपॉर्टेंट है. The next question is Giffen paradox occurs when income effect is very easy. तो कब होगा? जब आपका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा और ग्रेटर होगा देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो इस केस में आपका जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोपिंग होगा इन द केस ऑफ गिफिन गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड इज कॉल्ड अ गिफिन गुड व्हेन द इनकम इफेक्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन नेगेटिव एंड इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो आप नोटिस कर सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं गिफिन गुड के ऊपर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफीरियर गुड. अब इंफीरियर गुड का मतलब क्या है? इंफीरियर गुड का मतलब ये है कि अगर प्राइस ऑफ एक्स फॉल होगा तो क्वांटिटी ऑफ एक्स तो इंक्रीज होगी, लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो क्या क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स फॉल होगी. इसमें ऑप्शंस है केरोसिन, कुकिंग फैट, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल फर्टिलाइजर. तो केमिकल फर्टिलाइजर आपको पता है ये इंफीरियर गुड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है. 2 ऑप्शंस जो बहुत क्लोज हैं, एक है केरोसिन और एक है कुकिंग फैट. कुकिंग फैट ऑल्दो इन्होंने क्लियरली इसको एक्सप्लेन नहीं किया है बट बुक में एक जगह एच.एल. आहूजा में एग्जाम्पल दे रखा है वनस्पति घी का कि फैमिलीज हु यूज वनस्पति घी विल मूव ऑन टू देसी घी when the income of the family increases, right? Which is very
ऑब्जर्वेंट ऑल्सो, बट इसका करेक्ट आंसर केरोसिन होगा, क्योंकि केरोसिन यूजुअली एक ऐसा फ्यूल है जो लो इनकम हाउस होल्ड में यूज किया जाता है। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, केरोसिन इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड्स विच वॉज कवर्ड अंडर राशन स्कीम। तो अगर जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, दे विल शिफ्ट टू मोर क्लीनर फ्यूल्स सच एज एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी एंड बेटर फ्यूल्स। Therefore, your correct option is kerosene. This question in consumption, inferior goods have negative income effect, positive income effect, zero income effect, infinite income effect. Correct option is negative income effect. Now, this is an interesting question. In the above diagram, if curve IC represents income consumption curve, then it means that. तो ये आपका एक income consumption curve आपको दे रखा है. Let me just clear it once. अगर ये इनकम कंजम्पशन कर्व आपको दे रखा है, तो इनकम कंजम्पशन कर्व क्या प्लॉट करता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इनकम कंजम्पशन कर्व ये प्लॉट करता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, तो जो आप गुड कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे उसकी क्वांटिटी चेंज होती है। तो बेसिकली इनकम इफेक्ट, ये इनकम इफेक्ट को ट्रेस आउट करता है। इस केस में दिस इज गुड ए एंड दिस इज गुड बी। सो व्हाट हैपेंस दैट कि इनिशियली जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी ऑफ ए एंड क्वांटिटी ऑफ बी दोनों इंक्रीज हो रही है। बट आफ्टर अ पॉइंट आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ ए जो है वो रिड्यूस हो रही है। इसलिए इस केस में ओनली ए इज एन इंफीरियर गुड इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन इनकम कंजम्पशन कर्व. You should read it once. Let's look at these diagrams, क्योंकि ये पूछा जा सकता है पेपर में। तो इस केस में आप देखिए इनकम कंजम्पशन कर्व कैसा है जब गुड एक्स एक इंफीरियर गुड है। तो एट हायर लेवल्स ऑफ इनकम व्हाट हैपेंस, द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स रिड्यूसेस। सिमिलरली अगर हम गुड वाई के केस में देखें, अगर गुड वाई आपका एक इंफीरियर गुड है, तो आपका इनकम कंजम्पशन कर्व इस तरीके का दिखेगा। ऑल्दो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप डायग्राम देखेंगे और आप अगर थोड़ा व्हेन यू लुक एट द डायग्राम इन द एग्जाम एंड यू सी कि ये किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो बहुत इजी हो जाएगा फिगर आउट करना। तो इसको याद रखना जरूरी नहीं है, बट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर टू दिस, अब ये डायग्राम जो है, ये इनकम कंजम्पशन कर्व जो है, इसका बेसिस एंजल्स लॉ है। एंजल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि फूड जो है इनकम इनइलास्टिक हो जाता है। इनकम इनइलास्टिक क्यों होता है? क्योंकि फूड एक नेसेसिटी। तो एज योर इनकम इंक्रीजेस, जो आप प्रपोर्शन ऑफ इनकम उस पर स्पेंड करेंगे वो कम होता जाएगा। तो इन केस इनकम इलास्टिसिटी आपके दोनों गुड्स की इक्वल है, तो आपका जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो इस तरीके का दिखेगा। अगर Y लग्जरी है, अगर आप देखें तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है, जो Y का कंजम्पशन है वो डिसप्रपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहा है। X का प्रपोर्शन कम हो रहा है, Y का प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में X एक नेसेसिटी है, Y एक लग्जरी है। सिमिलरली इस केस में X लग्जरी है एंड Y इज अ नेसेसिटी। तो आपको एक ऐसा डायग्राम दिया जा सकता है पेपर में और आपसे पूछा जा सकता है कि which of the following goods are a luxury or is a necessity, and you should be able to tell ये इनकम कंजम्पशन कर्व देख के कि कौन सा गुड लग्जरी है और कौन सा गुड नेसेसिटी। प्रोबेबल क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इनकम कंजम्पशन कर्व which one of the following is correct beyond point A। ये क्वेश्चन अभी हम करके आ रहे हैं। इस केस में दो गुड्स आपको दे रखे हैं। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम गुड एक्स का कंजम्पशन तो जो है वो बढ़ रहा है, बट गुड वाई का कंजम्पशन जो है फॉल हो रहा है। इस कारण से करेक्ट ऑप्शन होगा गुड वाई इज इंफीरियर एंड गुड एक्स इज नॉर्मल। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है, आप दोबारा एक बार इसको आराम से देखिए। It's very easy to figure. Moving on to question number 11. In the given diagram, after the price change, the line shifts from PQ to P-Q- and the consumer comes to equilibrium at point A instead of point A. Then what is true for potatoes? तो आपको बेसिकली क्वेश्चन में ये बताना है कि पोटैटो का नेचर क्या है।
पोटैटो एक नॉर्मल गुड है, इंफीरियर गुड है या गिफन गुड है? तो पहले ट्रेस करते हैं कि प्राइस में क्या चेंज हुआ है, क्योंकि बजट लाइन शिफ्ट हुई है राइटवर्ड। जब बजट लाइन शिफ्ट राइटवर्ड हुई है, इट मीन्स दैट द प्राइस ऑफ पोटैटो हैज फॉलन। अगर कंज्यूमर इनिशियली P1 पोटैटोस कंज्यूम कर रहा था, आफ्टर द फॉल इन प्राइस द कंज्यूमर कंज्यूम्स P2 potatoes. Hence what you can see, पोटैटो की कंजम्पशन कम हुई है, पोटैटो की कंजम्पशन फॉल हुई है, which indicates what? Which indicates that this is a giffen good. अगर ये इंफीरियर गुड होता तो याद रखिए पोटैटो की कंजम्पशन फॉल नहीं होती। तो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इट इज अ गिफन गुड। Question number 12. The demand for rare paintings and rare stamps is explained by which among the following effects? So your options are snob effect, bandwagon effect, Veblen effect. Before moving on to the correct option, let's just understand कि ये तीनों का मतलब क्या होता है। तो snob effect और bandwagon effect को हम network externalities कहते हैं। network externalities क्या होती हैं? There are type of externalities in which one individual's utility for a good depends on the number of other people who consume the commodity. अब जब हम कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट assumption जो हम लेते हैं वो कहते हैं कि यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। हाउएवर नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज क्या कह रही हैं कि यूटिलिटीज जो होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, विच मीन्स कि आप जो एक गुड का कंजम्पशन कर रहे हैं इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन हाउ अदर पीपल आर कंज्यूमिंग इट। तो सबसे पहले इसमें बैंडवैगन इफेक्ट है। बैंडवैगन इफेक्ट रेफर्स टू द डिजायर और डिमांड फॉर अ गुड बाय अ पर्सन हु वांट्स टू बी इन स्टाइल बिकॉज पोजेशन ऑफ अ गुड इज इन फैशन एंड देयरफॉर मेनी अदर्स हैव इट। ठीक है, इसका मतलब है कि दूसरे लोगों के पास ये चीज है इसलिए आप चाहते हैं। तो बैंडवैगन इफेक्ट की वजह से जो आपका डिमांड कर्व है वो मोर इलास्टिक हो जाता है, ये बात याद रखनी है। साथ के साथ यहाँ पे एक फुटनोट दे रखा है कि बैंडवैगन इफेक्ट एंड स्नॉब इफेक्ट वर इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी बाय हार्वे लेविनस्टीन। तो ये बात याद रखनी है, इन इकोनॉमिस्ट का नाम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं और ये तो डायरेक्टली बुक में दे रखा है, अगर आप बुक को गो थ्रू करें तो ये मिस आउट नहीं कर सकते। सेकंड, स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? स्नॉब इफेक्ट रेफर्स टू द डिजायर टू पोजेस अ यूनिक कमोडिटी हैविंग अ प्रेस्टीज वैल्यू। मतलब आप एक यूनिक गुड चाहते हैं, अगर दूसरे लोगों के पास वो गुड है तो आप वो गुड नहीं चाहते हैं। Rare works of art, specially designed sports cars, specially designed clothing, made to order, very expensive luxury cars. These are the examples of snob effect. इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका डिमांड कर्व रिलेटिवली इनइलास्टिक हो जाएगा या लेस इलास्टिक होगा, because if other people are having that good, you would not want to have that good. Lastly, what is Veblen effect? Veblen effect tells you that some consumers measure the utility of a commodity entirely by its price, which means what? When the price of a commodity increases, the quantity demanded will increase. जैसे diamonds की prestige value होती है because they are considered good by the upper strata of society. So this is an example of Veblen effect. अब आपको तीनों effects पता चल गए हैं तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। The correct answer is snob effect. Moving on to the next question, question number 13. If the income effect for a good is in the opposite direction as the substitution effect, but the substitution effect dominates, then the good is inferior but not giffen. Question number 14. Which of the following is not true? आपको not true बताना है। Total effect of a price change on consumption of a good is a combination of income effect and substitution effect. Correct. Second, for inferior goods, the income effect is always larger than the substitution effect in absolute terms. So this option is your correct option. Correct option in the sense that this is a wrong statement. Why? Because हम पढ़ चुके हैं कि income effect जो है dominate नहीं करता inferior goods के केस में, giffen goods के केस में dominate करता है। The other option is for corner solutions, MRS XY is not equal to PX by PY. This is correct. Lastly, for a normal good, both the income effect and substitution effect hold. So today we have discussed questions on price effect and giffen goods.
Thank you so much for having the patience to watch the video. For the PDF, please visit our Telegram channel. We have linked it in the description. Also, if you have any doubts or if you have any specific topic that you want us to cover in the videos, please drop in the comments.